सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक। मोखी उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। मेरे मन एक स्यों चित लाए, एकस बिन सब धंध है। सब मिथ्या मोह माय, एकस बिन सब धंध है। सब मिथ्या मोह माय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, तिन्हां दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों, करता पुरख वाहिगुरु जी ने अपार रहमत बख्शिश कीती है। ये उद्यम बल सानू सबना नू बख्शिया है, जिस सदका सतगुरु जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर के अते मीडिए दे इस साधन राही गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमयी बाणी दे नाल सतगुरां दे पावन उपदेश नाल जुड़न दा ये सुभाग समा, ये उत्तम घड़ियां सानू प्राप्त होईयां हन। सत्कारयोग भाई साहब जी ने तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जी का पावन शब्द उपदेश राग वडहंस दे विचों धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन अंक 560 उपरों सानू पढ़ के सुनाया है। धन गुरु अमरदास महाराज अज दे इस पावन शब्द दे रहाओ वाले बंद विच बख्शिश करदियां होयां सानू दस रहे हैं कि हे मनुख, रब दी सिफत सलाह दी बाणी, वो बाणी जिस विच रब दी सिफत है, रब दी सलाह है, रब दी वडियाई है। ते रब दी वडियाई, रब दी उस्तत, रब दी सिफत इस करके मनुख ने नहीं करनी कि कोई रब नूं भुख है अपनी वडियाई जां अपनी उस्तत सुनन दी, बल्कि अपने जीवन का हनेरा दूर करने वास्ते मनुख ने परमात्मा दे प्रभु दे गुणा वाले पासे ध्यान करना है। जैसा कि महाराज ने बाणी विच फरमाया, बिन उपमा जगदीश की बिनसै ना अंधियारा। करते वाहिगुरु दी वडियाई तो बिना मनुख दे जीवन का हनेरा दूर नहीं हो सकता। अवगुणा दी छाई होई ये काली बोली रात जिहड़ी है खत्म नहीं हो सकती। जे मनुख अपने जीवन नूं गुणा दे चानण विच जीवना चाहुंदा है, हनेरे दियां टक्करां तो भटकना तो बचना चाहुंदा है, तो वह अपना ध्यान परमेश्वर दे गुणा वल करे, वाहिगुरु दी वडियाई वल रखे। नाल ही हजूर ने पावन बाणी दे विच ऐसा भी जिक्र कीता है कि उहदी वडियाई करन दा भाव यह है कि मनुख उहदे गुणा नूं कथन करके, गुणा वल ध्यान करके उहदे गुणा नूं अपने जीवन विच ले आवे। गुण कह गुणी समावणिया, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਸ ਜਾਣਾ,
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੀਏ, ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ, ਉੱਚਾ ਆਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ? ਜੈਸਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਤਤ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਪਮਾ ਉਸ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਤ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਸ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਬੰਨ ਲਿਆ।
हजूर ने ताईओ बाणी दे विच साडा आ जिहड़ा भुलेखा है दूर करन वास्ते ही बाणी च आख्या है, घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। कहण लगे तैनू घालना ते मान है, तैनू अपने कीते काम दे उत्ते ही इन्ना गरूर है, इन्ना दावा है तेरे अंदर कि तू सोचदा यही अखीर है। नहीं, मिलियो आए अचिंता। बादशाह ने साडी हौमे वाली मत नूं, साडे अहंकार वाले सुभाਅ नूं ते साडी दावे बनण वाली जिहड़ी सोच है ना, जिहदा करके ही संसार विच कलेश है। दावै दाजन होत है, निर्दावै रहे निशंक। जो जन निर्दावै रहे, हजूर ने आख्या जिहड़े दावा बनते ने ना, जिन्हां दे अंदर यह भावना हुंदी है कि वह हमेशा ही यह कह सकन भी हाँ मैं जो कर सकदा ठीक ही कर सकदा, मैं कदे गलत नहीं कर सकदा, मैं जिहड़ा कर्म कीता यही रब नूं पाउण दा इको एक मार्ग है। जिवें कि हजूर ने पावन बाणी दे विच आख्या, महाराज कहण लगे जोगी कहें जोग भल मीठा, अवर ना दूजा भाई, रुंडित मुंडित एक शब्दी ये कहें, सिद्ध पाई हर बिन भरम भुलाने अंधा, जापह जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु फंदा। जिन्होंने मैं समझदा सा कि इन्हां दे संगत करके, इन्हां कोल बैठ के, इन्हां दे मगर चल के मेरे जीवन का भला होना है, ये तां आप हौमे दी फाई च बजे पे ने, ये तां आप गुलाम ने, ये तो आप सजा भोग रहे ने, ये तो आप हौमे दे शिकार होए पे ने। इन्हां नूं तां आप माया दे मोह ने बुरी तरह गिरफ्त विच लिया होया है। मैं अनजान ने, मैं अज्ञानी ने इन्हां दा रूप रंग वेख के ही फैसला कर लिया कि इन्हां मगर चल के ही भला होना है। पर जदों गुरु दी दित्ती मत नाल समझ आई कि नहीं, इन्हां दे बाहरी रूप रंग ते ना जा, कर्म करके भी बजे होए ने, हौमे तो इन्हां दा भी अजे तक छुटकारा हो नहीं सकिया, विकारां दी जिलण विचों अजे ये भी निकलण दी समर्था पैदा नहीं कर सके। उल्टा इन्हां ने अपने कीते होए दा हंकार होर ज्यादा कर लिया, ये तां तेरे नालों भी ज्यादा हौमे दे शिकार ने। तां उस वेले समझ आई नहीं, इन्हां दे मगर चल के मेरे जीवन दा उधार हो ही नहीं सकदा, भला हो ही नहीं सकदा। क्योंकि दूजे ते भरोसा मैं तां करां जेकर कोई मनुख मैनू ऐसा नजर आए, पर मैनू गुरु ने मत दिती। कहण लगे ये गड्डां तैनू आप खोलणियां पैणगियां, क्योंकि परमात्मा ने तेरे अंदर भी वो गुण पैदा किया है, तेरे अंदर भी वो ताकत पैदा की है। तू गुरु के उपदेश नूं कमाई जा ते अपने जीवन नूं सवारी जा। हुण वेखो फरीद साहब ने किते ये ते नहीं ना आख्या अपनी पावन बाणी दे विच कि बंदिया तैनूं फलां बंदा ही सवार सकदा है, तू तां ही चंगा बन सकदा है। किते लिखिया गुरु ग्रंथ साहब च यही लिखिया, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। आपे नूं पछाणन दी गल कीती है गुरु ग्रंथ साहब ने। गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या आप सवारें मैं मिले, अपने सवारना अपने आप नूं ते सवारना भी आप है, ये शर्त है। गुरु कहंदे ने सवारना भी अपने आप नूं है ते सवारना भी आप है, तां सच दा रब दा करते दा मिलाप हो सकता है। अपने आप नूं सवारना ते आप ही सवारिया जाना है, दूजा नहीं सवार सकता। हाँ, कोई चंगी विचार करदे शुभ मत दे सकता है, चंगे ख्यालों नाल सांझ पै सकती है, चंगे विचारां नाल सांझ किसे नाल पै सकती है, पर सवारना किसे ने नहीं। सवारना मनुख ने अपने आप नूं आप ही है, क्योंकि असीं विगाड़िया भी अपने आप नूं आप है ते सवारना भी अपने आप नूं आप है। ये तो मनुख दा भुलेखा है कि कुछ विगड़ जाए तो कहंदे जी दूजे ने विगाड़िया। ये तां मेरे जीवन च आ गलती तां है कि ये दूजे ने मेरे जीवन च विगाड़ पैदा कर दिता। अज तुसीं जिधर भी देखोगे ना यही अवस्था है। असी एक नशा करने वाला आदमी भी कहता मैनू तो यह बीमारी लगी नहीं सी, बुरी आदत का मैं तो शिकार ही नहीं सा, यह तो फलाने दोस्त की कृपा हुई है, उसकी संगत ने मैनू बुरा बनाया, मैं तो जुआ खेडदा ही नहीं सा, ये आदत मैनू किसी ने पाई है, मैं तो माड़ा बोलदा ही नहीं सा, ये आदत मैनू फलानियां कोल रह के पई है। हर एक औगण का दोष जिहड़ा है मनुख दूजे दे सिर ते आरोपदा है, दूजे दे सिर ते थपदा है, अपना भांडा दूजे सिर भन्नदा है कि वेखो जी ये मेरी वजह करके नहीं दूजियां दी वजह करके गलत होया है। पर महाराज ने वचन कीता, कहण लगे दद्दै दोष ना देऊं किसै, दोष करमा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना।
कहने लगे तेरा मन, तेरा हिरदा, तेरे कर्म, तेरे बचन तेरे ने। इन्हां दे उत्ते कंट्रोल करन दा मतलब भी तेरा है। इन्हां दी राखी करनी, इनू सवारना, इनू विगाड़ना, ये सब तेरे अपने हाथ दे विच है। कोई तेरे जीवन विच विगाड़ पैदा नहीं कर सकता। ख्याल करियो, साडे सामने तो उदाहरण बड़ियां कमाल दियां ने, साडे महान बुजुर्गां दियां, साडे सतगुरु साहिबान दियां, ऐसियां पुरातन हस्तियां दियां जिन्हां दे जीवन नूं पढ़ सकदे। वेखो इस संसार विच लोभ किन्ना है, लुट है, खोह है, रिश्वतखोरी है, आपा धापी है, हौमै दा बोल कबोल है, जुल्म सितम, किन्ना कुछ है संसार दे अंदर। और मैं भी एक बेनती कर दियां, बहुतियां नूं शायद मौका नहीं मिलिया, नहीं तो औरंगजेब दी अज भी औरंगजेब किन्ने ने यह गिणती नहीं की जा सकती। जिन्नियां क नूं मौका मिलता है वो अपना आपा विखा जाते हैं। ये साडा ही भरम है कि इन्नी सन नूं, इन्नी तरीक नूं औरंगजेब मर गया। मरदा है औरंगजेब? कदे नहीं मरदा। एक आदमी सी, मर गया। सोच अजे भी संसार विच उवें ही है। नादर शरीर करके मर गया होवेगा, पर ओहो जिहा माड़ा जीवन जीण वालियां दी घाट संसार विच कोई नहीं। बस जिन्हों ताकत मिल जाती है ना, वो अपना आपा फिर विखाउणा शुरू कर दिंदा है। जे पल्ले धर्म होवे, जे गुरु दा सच होवे, जे गुरु दा उपदेश होवे, तां मनुख तां ही सुथरी जिंदगी जी सकदा है। वरना इत्थे आम आदमी नूं भी औरंगजेब बनदियां समा नहीं जे लगदा। आम आदमी नूं भी इत्थे नादर ते अबदाली बनदियां टाइम नहीं लगदा। हर बंदे दे अंदर जिथे हंकार खड़ा है, जिथे लोभ खड़ा है, ख्याल करो जे उन्होंने उन्नी ताकत दे दी जाए तो की करेगा। अजे उहदे कोल ताकत थोड़ी है, दो चार गुआंढियां नाल ही ठगी मारदा है, ते जे भला उहदे कोल ताकत ज्यादा आ जाए तो वह सारे शहर नूं ते सारे देश नूं टिकण देवेगा? नहीं टिकण देवेगा। अजे तो अपने परिवार नूं ही टिकण नहीं देंदा। ख्याल करो जे उहदे कोल ज्यादा ताकत आ जाए, हुक्म चलाउण दी ताकत आ जाए तो की करे? उन्हें अवगण भी फिर उस हिसाब नाल ही करना है। जिन्नी ताकत वधदी जाएगी उन्ना उहदा पाप भी वधदा जाएगा। जिहड़ा मनुख अज अपने जीवन विच अवगण दा त्याग नहीं कर पा रहा, उहदी वजह करके वो आप दुखी है, उहदी वजह करके परिवार दुखी है, उहदी वजह करके आला दुआला दुखी है। ते सोच के वेखो, जे उस आदमी नूं ताकत ज्यादा मिल जाए तो उन्ना ही ज्यादा उहदा पाप भी वध जाना है। इस करके ये साडा कई बार भरम ही हुंदा है भी किसे दे पापी बनाया असी पापी बनते हैं। नहीं, असी पाप पहला ही दिल च लुकोई बैठे हैं। बस जदों मौका मिलता है उन्होंने प्रगट करन दा उदों करते हैं। जिस वेले समा बनता है, कारों कोई कारण बन जाए, कोई बहाना बन जाए, कोई सानू इस पासे वाल माड़ा जिहा प्रेरणा कर देवे, असी पहला तैयार हुंदे हां, तां तुरदे हां पाप वाले पासे। जे साडे मन च ऐसा ख्याल ही ना होवे, जबरदस्ती कोई सानू पापी बना ही नहीं सकता। हजूर ने पावन बाणी च आख्या है, जो धर्म कमावै तिस धर्म नाओ होवै पाप कमाणै पापी जानी है। जो धर्म की कमाई करदा है वह धर्म ही है, जो पाप कमा रहा वह पापी है। ना जबरदस्ती किसी नूं कोई पापी बना सकता ते ना धर्मी बना सकता, दोवें गल्लां ही ने। अज असीं सोचते हैं किसी कोलों धागे ले लईए, किसी कोल बैठ जाइए, किसी दे कोल बैठिया खास किस्म के पहरावे धारण कीतिया, किसी कोलों कन्नां विच नाम लै लैण दे नाल, अखौती नाम लै लैण दे नाल असीं धर्मी बन जाने आ। नहीं बना सकता सानू कोई धर्मी इवें। ये तो बस एक बिजनस जिहा है, धर्म दा चली जा रहा है। धर्म के नाम के उत्ते बई कोई किसी नूं किसी चीज़ का छलावा दिंदा है, कोई किसी नूं किसी चीज़ का भुलेखा पाउंदा है, ते भुलेखा ना पाया जाए तो ठगिया नहीं जे जा सकता। ध्यान देना, जदों ठगी मारी जाती है ना तो भुलेखा पा के ही मारी जाती है। भुलेखे तो बिना मनुख काबू ही नहीं आता। इस करके कौन है जो इस संसार में ठगिया जाना पसंद करेगा? तो जे ठगिया जाता है ना मनुख, तो अपनी अज्ञानता करके भुलेखा पा के ही ठगिया जाता है। इस करके धर्म का भुलेखा पा के ठगना बहुत सौखा है संसार के अंदर। ये सब तो लाहेवंदा कर्म है, बिजनस है, माया का व्यापार है। इस करके जिन्ने ठग, मुआफ करना ये लफज मैनू वरतना पै रहा है, जिन्ने भी ठगां नूं दुनिया च लुकण लई थां ना मिले, उन्हां नूं धर्म का खेमा मिल जाता है लुकण वास्ते, धर्म का नाम मिल जाता है, धर्म का पहरावा मिल जाता है। गुरु नानक पातशाह का जीवन पढ़ के वेखीए, जे इस गल नूं होर सौखे ढंग नाल समझना होवे ना, आप
गुरु नानक महाराज का जीवन पढ़ो। मेरा ख्याल है हजूर गुरु नानक महाराज ने जिन्ना धार्मिक स्थानां दे उत्ते चक्कर लाया है ना लोकां दा भला करन वास्ते, जिन्ना धर्म आगूआं नाल गल कीती है, जिन्नी धर्म पहरावियां नाल वालियां नाल गल कीती, और जिन्ने धर्म दे नाम दे उत्ते कर्म करन वाले श्रद्धालुआं नाल गल कीती, उन्नी किसी होर नाल कीती नहीं। हजूर तीर्थां ते जा रहे हैं, पुजारियां नूं भी समझा रहे, श्रद्धालुआं नूं भी समझा रहे। कदे मक्का, कदे हरद्वार, कदे मदीना, कदे सतगुरु जगन्नाथपुरी ने, कदे किसे धर्म स्थान ते, कदे किसे धर्म दे नाम ते बने स्थान दे उत्ते। और ख्याल करिए हजूर ने अपनी पावन बाणी दे विच भी कैसे कैसे कामां दा जिक्र कीता। क्यों भला? क्योंकि महाराज ये गल समझते हैं इक्को ही चीज़ है जिहड़ी मनुख नूं सवार सकती है, वह है धर्म। धर्म तो बिना मनुख दा पार उतारा नहीं, पर धर्म बारे जिहड़ा भुलेखा खड़ा हो गया उन्होंने दूर जरूर करना चाहिए। एवें धर्म किते भुलेखे ही ना बन के रह जाए, एवें धर्म किते वहम ते भरमां दे विच ही उलझ के ना रह जाए। धर्म की सच्ची सुच्ची विचारधारा दे दर्शन मनुख नूं जरूर करवाने चाहिए ने, क्योंकि इहदे तो बिना भला नहीं होना, इहदे तो बिना पार उतारा नहीं होना। हजूर सच्चे पातशाह जिथे ऐसा कर्म कर रहे हैं उत्थे सज्जन वर्गे मनुख भी गुरु नूं मिलते हैं। बाहरों धर्मी हन, अंदरों ठग हन, क्योंकि ठग तो हन ही, असलीयत उन्हां दी ओही है जो उन्हां दे अंदर है। बंदा असल च ओह हुंदा है जो कुछ उहदे अंदर भरिया है, जो कुछ बाहर है ना वो असलीयत नहीं हुंदी। बहुती बार बहुत विरले हन जिन्हां नूं गुरु ने सत्कार दिता है ऐसे जीवन वालियां नूं, जिथे महाराज कहंदे जिन पाटे अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेह लगा रब से ती देखने विचार। कहने लगे जेडे अंदरों रेशम वर्गे होण, अंदरों साफ सुथरे निर्मल शुद्ध होण, बाहरों भावें वो किसी भी समाज नाल, भाव किसी भी जात पात इत्यादक गरीबी नाल ही भावें संबंध रहे, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। महाराज ने आख्या वो भले ने, वो उत्तम ने। नहीं तो बहुता संसार तो मेरे वर्गे जीवता ही चाहते मैं बाहरों निर्मल ही नजर आवां, धर्मी, बड़ा उच्ची सुरत वाला, बड़ा रब दा प्यारा, बड़ा भगत, ऐसा ऐसा नजर आवां जिहो जिहा लोग लाइक करते हैं, चंगा समझते हैं। बाहर की निर्मलता नूं बंदा ज्यादा पहल देण लग पिया। इसे करके दावा करदा मैं तीर्थ नहा लए ने, मैं दान कर लिया, मैं पूजा पाठ करदा हां, मैं बड़े चंगे चंगे ख्याल सुनदा हां ते कथ दा सुणाउंदा हां। ऐसे ये सारे कर्म ने बाहरी तौर के उत्ते दसन वास्ते। और गुरु ने आख्या जेड़े जियों मैले ने ते बाहरों निर्मल ने, उन्हां पता की कर लिया, कहंदे तिनी जन्म जुआ हारिया। उन्हां तो अपना जीवन जुए च हार लिया। उन्होंने केवल बाहर दी निर्मलता ही ध्यान दिता, अंदर की पवित्रता वाले पासे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिता। फिर गुरु नूं पुछया महाराज तुहानूं किहड़े प्रवान ने? कहन लगे सच की कसवटी ते खरे वो उतरनगे जेड़े जीओं भी निर्मल ने ते बाहरों भी निर्मल ने। बाहरों भी उन्हां दे कर्म सुथरे ने, विखावे वास्ते काम नहीं करते, लोकां दी वाह वाह खट्टण वास्ते धर्म दा काम नहीं करते, बाहरों भी सुथरा काम करते ने ते चंगी भावना नाल करते ने। ते महाराज ने आख्या जिन्हां दे मन की भावना भी पवित्र है, निर्मल है, मन ते मैल कोई नहीं विकार दी, विखावे दी, पखंड दी, जेड़े जीओं भी निर्मल होण ते बाहरों भी निर्मल होण, हजूर ने आख्या ओही चंगे ने ते ओही प्रवान ने जेड़े अंदरों मैले ते बाहरों निर्मलता विखाउण दी कोशिश विच ही रहिंदे ने। वो चंगे नहीं, वो दंभी हन, वो पाखंडी हन। इस करके गुरु साहब ने तां जिहड़ा दोगला किरदार है इहनूं प्रवान ही नहीं किया भी दो तरह का किरदार होवे, अंदरों मनुख होर बाहरों होर, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। हुण तां कच्चे जीवन का मालक आख्या ते मुकम्मल जीवन का मालक उन्होंने आख्या आठ पहर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मुकम्मल जीवन के मालक ने जेड़े हर वक्त वाहिगुरू दा परमात्मा दा एहसास करते हैं, उन्होंने महसूस करते हैं, अपने अंग संग नेड़े जानते हैं और सदा उदी भै भावनी विच विचरदियां होया अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। महाराज ने उन्होंने उच्चे जीवन के मालक आख्या। हजूर कह रहे जे तू परमात्मा दे गुणा वडियाई सिफत सलाह दी बाणी नाल जुड़ जाए, हजूर ने शब्द वरतिया, कहने लगे फिर तेरे जीवन विच सदा सुख होवेगा। सदा सुख
सच है शब्द विचारी। जे तू प्रभु की सिफत सलाह दे राही विचारवान बन जावे तां, विचारवान का अर्थ है भी उस चंगे ते बुरे विचार दो तरह के ख्यालों के विचों तैनू चंगे विचार की चोण करनी आ जाए। तू गुरमत ते मनमत तेरे सामने होवेगी, उहदे चों तू गुरमत नूं चुन लेना है ते मनमत का त्याग कर देना है। जदों तेरी ऐसी बुद्धि बन जाए, ऐसी सोचण शक्ति तेरे अंदर पैदा हो जाए, महाराज कहंदे जिथे तू मनमत छड़ देवें ते गुरमत ग्रहण कर लें, जिथे तू बुराई का त्याग कर दें ते चंगियाई नूं धारण कर लें। जिन्हों महाराज बाणी च कहंदे सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए। जे तेरा ऐसा सुभाव बन जाएगा, वाहिगुरू दी परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई दे नाल जुड़ के परमात्मा दे गुणां दी गल गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिद्धांत विचों समझ के फिर महाराज कहंदे तू विचारवान होवेगा। फिर तू अखां मीट के चलन वाला मंद बुद्धि बंदा नहीं होवेगा कि एवें देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। भी देखा देखी दा पसारा ज्यादा है ना संसार दे अंदर, भी 10 आदमी खड़े ने, मैं भी विच खलो जाना, 11 हो जाते हैं, 11 वाल कोई होर वेखदा 12 हो जाते हैं। एवें ही वेख वेख के गिणती वधी जाती है, पता किसी नूं भी नहीं कि कहानी की है, असल गल की है। असी बहुते मुआफ करना भीड़ां तो प्रभावित हुंदे आ जां विखावे तो प्रभावित हुंदे आ। असलीयत नूं जानण वाले पासे तुरना यह बड़ा कठिन हुंदा है, क्योंकि इहदे लई खोज दी छाणबीण दी विचार दी लोड़ पैंदी है। पर मनुख ने धर्म की दुनिया च खास तौर के उत्ते विचार तो बहुता काम नहीं लिया। इस करके महाराज ने पावन बाणी दे विच सानू बार बार विचार वाले पासे तोरिया है भी विचार कर, इस गल नूं समझण दी कोशिश कर। तू छलावे दा शिकार है, तेरे नाल छाल हो रहा है, तेरे नाल धोखा हो रहा है, तेरे नाल फरेब हो रहा है, तेरे नाल ठगी वज रही है, तैनू इस गल दा ज्ञान कोई नहीं। ज्ञान हीणं अज्ञान पूजा अंध वरतारा भाओ दूजा। उत्थे महाराज बार बार सानू समझा रहे ने कि तू दूजे भाव विच लग्या होया है। धर्म के नाम ते तू अधर्म की पूजा कर रहे हैं, धर्म के नाम ते तू पाप नाल जुड़िया होया है। अंदर की है तैनू ये वेखण दी तू कोशिश नहीं करता। जे ऐसा ना हुंदा ना तो फरीद साहब ने बचन क्यों करने सन, जिथे फरीद साहब जी आखदे ने बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। उन्हें बचन ही वरते ना, कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। फाही सुरत मलूकी वेश, सौठ गवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता भार धान करूप रहा करतार। माथे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना। किन्ने ही बचन ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिहड़े सानू कुछ समझाउण वास्ते ने, सानू किसी असलीयत तक लिजाण वास्ते ने। गुरु के प्यार वाले सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करदे हैं, कहंदे ने फिर सदा आनंद रहेगा तेरे जीवन दे अंदर जे तू रब दी परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी भाव गुरु दे उपदेश नाल जुड़ के विचारवान हो जाएगा। फिर तेरे जीवन विच आत्मक कलेश जां आत्मक दुख नहीं होवेगा, तू आत्मक तौर ते सुखी होवेगा। ते जे तू ऐसा सुख गुरु दे शब्द विचों लभ लें, प्राप्त कर लें, तो फिर तो किसी ज्योतिषी नाल कॉन्टैक्ट करने की लोड़ नहीं ना पैनी। सोचो, फिर किसी सियाणे कोलों फूका मरवाउण की लोड़ नहीं पैनी भी इस पानी के उत्ते 4 फूका मार दिओ तो मेरा भला हो जाए। फिर किसी कोलों कोई तावीज़, कोई धागा, कोई ऐसी चीज़ लैके अपने घर की सुख शांति मंगण की लोड़ नहीं पैनी। सुखी भी तू होना है तो दुखी भी तू होना है। इस नुकते नूं मनुख समझण की कोशिश करे। दुखी हाँ मैं अपनी वजह करके, ते सुखी होना है वह भी मैं अपनी वजह करके। ना तो कोई मैनू सुखी कर सकता है ते ना कोई दुखी कर सकता है। ये मेरे मन की अवस्था है। जिहो जिहा मैं बनना चाहवां उहो जिहा मैं बन सकदा। कि ऐसे महान लोकां नूं असीं इतिहास विचों नहीं पढ़दे जिन्हां नूं दुख देण दा बहुत यतन किया गया। ये ठीक सी, उन्हां नूं सरीरक तौर दे उत्ते बहुत कष्ट दिते गए, पर उन्हां नूं दुखी कोई नहीं कर सकिया। कि ये सच नहीं? कलगीधर साहब महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान, किधरे हजूर कोल किले हन, फौजा हन, किधरे गुरदेव सच्चे पातशाह महाराज दे कोल
ऐसियां ऐसियां सुंदर वस्तुआं संगत दियां दित्तियां होईयां, संगत दे सेवा वास्ते ने कि जिस वेले पहाड़ी राजियां दा कहलूर रियासत दा राज पुरोहित जिहदा नाम इतिहास विच पंडित परमानंद है, वो आया, उन्हें देखिया ते जाके उन्हें चुगली की, कहन लग्या राजा जी मैनू तां लगदा तुसीं केवल नां दे ही राजे हो। भीमचंद ने पूछया क्यों? कहन लग्या जिहड़ी शोभा मैं गुरु दरबार दी वेख के आया ना, उहदे सामने तुसीं तां कख भी नहीं। हजूर दे दरबार दी शोभा, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे दरबार दी आभा वड्डे वड्डे बादशाहां दे दरबारां नूं मात पाउण वाली है। उहदा क्या रुतबा है? तुहानूं तां लोकां नूं कहना पैंदा भी झुको, उत्थे बेमुहारे हो के लोग झुकदे ने। तुहानूं तां टैक्स लैणे पैंदे ने। उस गुरु दे खजाने दे विच अपनी दसवंध दी माया पाउण लग्गिया सिख फखर महसूस करदा है। उस गुरु दे कोल बैठण वास्ते मनुख समां भालदा है ते तुहाडे तां कोई मत्थे भी नहीं लगना चाहुंदा, तुहाडे तो लोग डरदे ने। ते उस दरबार दी बाहरी दिख भी जो मैं वेखी है ना, वो ऐसी प्रभावशाली है कि उहदे सामने तुहाडी ये शानो शौकत ते ये वड्डे होण दे दम गजे कख भी नहीं। हुण ख्याल करियो, ये वक्री गल है भी परमानंद ने केवल बाहरी प्रभाव ही वेख लिया होवे, वो असलीयत नूं नहीं जान सकिया भी इत्थे सलामां जिहड़ियां ने वो पदार्थां नूं नहीं हो रहीआं, इत्थे सलामां गुरु दी करनी नूं हो रहीआं ने। वो इस गल नूं शायद ना जान सकिया होवे, पर इन्ना जरूर है भी वो गुरु दे बाहरी प्रभाव तो भी बहुत प्रभावित होया ते उन्हें यही गल जाके भीमचंद नूं दसी। पर कदे ख्याल करियो, वो ये की जानन भी गुरु पदार्थां दा गुलाम नहीं हुंदा, क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता च जिन्ने भी गुरु वेखे ने वो सारे पदार्थां दे ही पिछलग वेखे ने। पर गुरु नानक साहब महाराज की विचारधारा नूं जे कोई थोड़ा ध्यान नाल समझण दी कोशिश करे ना, इत्थे गुरु पदार्थ दा गुलाम नहीं, ते पदार्थ तां तुच्छ चीज़ है। इत्थे गुरु मनुखता दे भले वास्ते आपा तक भी कुर्बान करदा होया वेखिया जा सकदा है। इत्थे बिल्कुल ही वखरी गल है। हजूर ने आख्या सी ना, गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिस वेले शीए मसंद ने हजूर ते गोली चलाई ते उस वक्त हजूर नूं जदों पकड़ के हजूर दे सामने पकड़ के शीए मसंद नूं जिस वेले पेश किया भाई मक्खण शाह वल्लों, तो हजूर ने इन्ना आख्या सी शीए मसंद नूं संबोधन करदिआं, दरब के कार ने, दरबदार ते दौलत, दरब के कार ने गुरु महाराज ने नहीं बैठे दुकान पाई। ये दौलत इकट्ठी करन दी थां नहीं, तैनूं भुलेखा है, तेरे मन विच ये भरम है, ये दौलत इकट्ठी करन दा टिकाणा नहीं है, ये कोई पूजा करवाउण दी जगह नहीं है। ये तो एक महान जिम्मेवारी है, एक तो सेवा है। इत्थे गुरु भी रब दा चाकर हो के कर्म करदा है। हजूर गुरु नानक महाराज ने अपने आप नूं मालिक नहीं आख्या, आख्या मैं तो रब दा सेवक हाँ। हजूर ने सेवक दे गुण भी बयान किए, ऐसी निमरता, ऐसी निर्माणता, क्योंकि जदों सानू गुरु दे मकसद दी समझ आ जाए ना, साडे हंकार आपे ही दूर हो जाने ने। मैं अक्सर ही इस गल दा जिक्र कीता है, वेखो असी किन्ने भुलेखे विच हाँ। जिहड़ा बाणी लिख रहा है सतगुरु, वो निमरता दा पुंज है, ते मैं बाणी सुनाउण वाला ही अपने हंकार विच गुआचिया होया। मैनू हंकार इवें है भी जिवें मैं सारा कुछ हाँ। बाणी सुन सुन के असी हंकार दे विच चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सानू ये भरम असी कमाया नहीं ना। जे गल कमाई विच आ जाए ना ते हौमे नहीं हुंदी। अज असी गिणतियां मिणतियां च पए ना, ये हौमा ही है बदलवें रूप विच, ये हौमा ही होर कुछ नहीं है। जिस गुरु ने आपा तक कुर्बान किया, उन निमरता ते निर्माणता दियां मिसालां दे दित्तियां, पर असी थोड़ा जिहा दान करदे हां ते साडी हौमे ठल्ली नहीं रहिंदी, साडा हंकार काबू विच नहीं रहिंदा। क्योंकि साडे दिमाग विच एक सब तो वड्डी बीमारी वसी है, वह है चौधर, वह है मैं वड्डा हाँ, मैं महान हाँ, लोक मैनू महान आखण, लोक मैनू वड्डा आखण। इस भावना ने सिख दे जीवन नू गुरु दे नेड़े जाण ही नहीं दिता, इस भावना ने। क्योंकि इत्थे दा तां असूल है ना, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, सबना दी खाक होना प्रवान कर, आपस कहो जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। इस असूल नू सिख ने दृढ़ करना है। कदे
नवाब कपूर सिंह वर्गे उन्हां अपने पुराने बजुर्गों दियां उन्हां घटनावां नूं पढ़ के वेखी है। की है चौधर, की है वडियाई, की है नवाबी। जदों निशाना यह होवे ना कि गुरु दे दर ते घालना घालनी, सेवक सच्चे शाह के सेई प्रवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मुए अजान। गुरबाणी कहती है वह मूर्ख ने, अनजान ने, उन्होंने पता कख नहीं। ते जिहड़े सच्चे शाह दे सेवक हुंदे ने ना, उहदे झंडा बरदार ने, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫੂੰ ਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼, ਕਿੰਨਾ ਸੁਥਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ त्याग्या, वो भी समा सी जदों माछीवाड़े के जंगलों में हजूर नूं अपना कमर कसा ढिला करके कुछ समा आराम करना पिया। जमीन की सेज उत्ते मेरा सतगुरु एक टिंड की आसरे सराणे दे नाल और आसमान की छत के थले कुछ समय लई शरीरक आराम वास्ते रुके ने। पैरां दा जोड़ा, शरीर का पहरावा हजूर जी का पुराना है, घस गया है, फट गया है। मेरे पातशाह दे शरीर दे उत्ते कई किस्म दीयां झरीटां ने, कुछ जख्म ने। अज हजूर दे इस वक्त जिथे वो माछीवाड़े दे उस जंगल विच हजूर बाग विच कुछ समय लई आराम लई रुके ने, हुण उन्हां दी माता भी, उन्हां दे चारे साहिबजादे भी शहादत दा जाम पी चुके ने। परिवार का कोई मैंबर उन्हां दे कोल नहीं, ते सिख भी शहादतां दी मिसाल पैदा कर गए ते कुछ विछड़ गए, जिन्हां दी अगे जाके मिलण दी आस है। कोई फौजां, कोई किले, कोई आनंदपुर, कोई वो चीज़ जिहदे तो परमानंद वर्गे पंडित प्रभावित होण ते जाके ताना देण अपने मालक राजे नूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर की गुरु दे आनंद विच, गुरु गोबिंद सिंह साहब की खुशी विच, गुरु गोबिंद सिंह साहब के सहज विच कोई भंग पा सकिया, कोई खलल पैदा होया? हजूर के जीवन विच कोई उदासी आई, कोई मायूसी आई, कोई दुख आया, कोई चिंता आई? नहीं है। संसार ने यत्न किया कि वह दुखी हो जान, क्योंकि दुखी हो जाएगा ना बंदा तो आप ही झुक जाएगा, पर वो नहीं हो सके, उन्होंने कोई नहीं कर सकिया। बाबा बंदा सिंह दे मुख विच उहदे 4 साल दे पुत्र दा कलेजा कढ़ के पाया गया। पुत दे कलेजे दा लहू एक बाप दे बुल्लां नूं लग्या है। यह दुनिया दी अनोखी घटना है। पुत्र दे कलेजे दा लहू बाप दे बुल्लां नूं छूंदा है ते बुल रत्ते जांदे ने लहू दे नाल। कदे दुनिया की ऐसी घटना किसी तारीख दे विचों पढ़न वास्ते, सुनन वास्ते मिलेगी? ये कोई परालौकिक आसमानां दी कहानी नहीं, इत्थे ही वापरी हुई गल है, इस देश विच, इसे धरती ते, और हकीकी गल है। अखी वेखण वालियां ने लिखियां ये घटनावां दर्ज कीतियां कि उन्हां दे जीवन दे सुख, चैन, आराम, उन्हां दे सिदक, उन्हां दी दृढ़ता नूं कोई तोड़ सकिया। अपने दुख नाल उन्हां नूं कष्ट दे के, उन्हां ते जुल्म करके। गुरु के प्यार वालिओ, अज असी किहड़ी चीज़ तो घबराए होए हां कि सानूं मड़ियां ते जाना पैंदा है, कबरां ते जाना पैंदा है, डेरियां दी रौनक वधाउणी पैंदी है, ज्योतिषियां दे चक्करां च पैना पैंदा है, सानूं कई तरह के सुरक्षा कवच ते चक्कर लैणे पैंदे ने। असी इस बिजनेस दे हिस्से क्यों बन गए कि सिख कोई ऐसे वपार नाल संबंध रखदा कि सिख दी सुरत, सिख दा जीवन जिहड़ा वो ऐसे कर्म कांडां दे नाल, वहमां भरमां दे नाल, ऐसी अज्ञानता दे विच, ऐसी दुबधा दे विच उलझ जाना सिख नूं शोभा दिंदा है? जरा सोच के वेखीए।
किधरे ऐसा तो नहीं असी धर्म के भुलेखे दे विच ठगे जा रहे होइए, साडा सिदक ठगिया गया। सब तो वड्डी ठगी माया दी तां चलो छड्डो, माया तो अज है कल नहीं होवेगी, अज चली गई कल आ भी सकती, माया का व्यापार दौर ऐसा ही है। पर ख्याल करियो सिदक नूं ठगी ना वज जाए। जे सिदक नूं ठगी वज गई ना, जे भरोसे नूं ठगी वज गई तो समझो सब कुछ गया। अज साडे भरोसे नूं ठगी वजी है, अज साडे सिदक नूं हड़पण की कोशिश की गई। जिहड़ा सिदक सिख दा अपने गुरु ते होना चाहिए सी, वो सिदक अज जां तां लीडरां ते टिक गया ते जां कर्मकांडां ते टिक गया। धार्मिक चोले वालियां ते सिदक टिक गए, शब्द दे उत्ते वो सिदक नहीं अज सिख दा जिहो जिहा होना चाहिए। कि यह सच नहीं है साडे समाज दा, इहनूं भावें असीं जिन्ने मर्जी परदे पाईए, यही सच है। जिन्नी दृढ़ता, जिन्ना भरोसा, जिन्ना विश्वास सिख दा गुरु की बाणी ते होना चाहिए है, उदों ज्यादा तां असी शरीरां ते टिका लिया, थड़ियां ते रुखां दी पूजा, कोई भी चीज़ सानू मिलनी चाहिए है, बस असी तां तैयार बर तैयार हाँ मत्था टेकण वास्ते। मत्था टेकना अज साडा शुगल हो गया, मन परचावा, मनोरंजन हो गया, साडी आदत जही बन गई है। असी सोचते ही नहीं कि यह मत्था टेकण वाली थां है भी कि नहीं है। असी अक्सर ही एक लफज वरतते हैं, गुरु का आदर करो, गुरु का सत्कार करो। पर मैं एक बेनती करा, जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बिना बाकी होर थावां ते मत्था टेकना बंद कर दिता ना, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार उस दिन असल रूप में बहाल होना है। भला क्यों? जदों असी गुरु ग्रंथ साहब नूं भी नमस्कार कीती, एक बंदे नूं भी मत्था टेकिया, ते साडी नज़र विच गुरु ग्रंथ साहब ते वो बंदा इक्को जिहा ही ने ना। एक थड़े नूं मत्था टेकिया, कबर नूं, मड़ी नूं मत्था टेकिया, गुरु ग्रंथ साहब नूं भी मत्था टेकिया, ते साडी नज़र विच मुआफ करना कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज वो मड़ी, कबर, थड़ा, रुख, जिन्हों जिन्हों भी असी होर मत्था टेक रहे हैं, कि कोई फर्क रह गया? नहीं ना रह गया। सिख ने गुरु ग्रंथ साहब नूं किन्हां दे बराबर लिया खिला रहा है? ये सोचियो कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज महान ने कि वो चीज़ां महान ने। जदों सानू ये समझ आ गई ना, उस वेले गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार आपे ही बहाल हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार असी अपने काम करके बहाल करिए, पदार्थां करके ही ना करिए। पदार्थ तो आउंदे जांदे रहणगे, ये तो सदा कदे टिकदे ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, जे गुरु ग्रंथ साहब का असल सत्कार किया जाना है। मैनू हैरानी होंदी है ऐसे लोगों के उत्ते भी जिन्हां ने बड़े 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 चिट्ठे छापे हुए ने गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार वास्ते। पीड़ा इन्ने फुट दा होवे, गुरु ग्रंथ साहब कोल आउण वाला पजामा ना पहने, उन्हें आ ना खादा होवे, उन्हें केसी इशनान कीता, भावें वो पहले ही इशनान करके साफ सुथरा होवे, ते आम बंदा तो गुरु ग्रंथ साहब के नेड़े भी नहीं जा सकता। जिहड़ी मर्यादा उन्होंने घड़ी है वो आम सिख वास्ते नहीं, केवल उन्होंने वास्ते है। तो मैं हैरान हुन्ना जदों उसे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच बंदियां दियां आदम कद फोटोआं ला के उन्होंने वो भोग लवा रहे होंदे ने। कैसा सत्कार का दंभ है जिहड़ा असीं करदे हां। जदों उत्थे ही गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बंदियां दी वडियाई दे झूठे पुल बन्ने जांदे ने, रब बनाया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मुआफ करना की केवल ते केवल अपने माड़े मनोरथ की सिद्धि वास्ते किते वरतिया ते नहीं जा रहा। ये सिखां नूं भरमाउण वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश कर लिया, उहदी सेवा भावना नाल जोड़ दिता गया। पर अगली गल जिहड़ी है गुरु की गल तां उत्थे कोई है ही नहीं। गुरु का सिद्धांत, गुरु का मैसेज, गुरु की विचारधारा, गुरु जो कहिंदे ने बाणी दे विच सारा कोई तां उदों उल्टा हो रहा है कि गुरु का हुक्म मनना जरूरी नहीं, ये सत्कार विच नहीं आउंदा। कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आग्या का पालन करना यह किसी सत्कार का हिस्सा नहीं, कि गुरु की दसी मर्यादा ते पहरा देना यह किसी सत्कार विच नहीं आउंदा। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बंदियां दी आदम कद फोटोआं लाउणियां ते उन्हां नूं महाराज आखना, उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच देवी देवतियां वांग मंदिरां दे विच जिवें भोग लाए जांदे ने इवें लाउणे। जुतियां की पूजा हो रही है बहुते डेरियां दे विच, खूंडियां दी, गुजर चुके साधां दियां उथे चोले लटका के उन्हां नूं मत्थे टकवाए जा रहे हैं। कैसा दंभ है, पखंड है सत्कार दे नाम दे उत्ते जिहड़ा साडी झोली पाया जा रहा है। सिख नूं जिन्ना चिर इन्हां चीज़ां दी पछाण परख नहीं ना आउंदी उन्ना चिर सिख जिहड़ा है वो सही अर्थां च गुरु दा सत्कार बहाल नहीं कर सकेगा। अज कोशिश करिए केवल गुरुद्वारे नूं
केवल गुरुद्वारे नूं जिहड़ी संस्था हजूर ने सानू बख्शी है, अज डेरियां दी रौनक ना वधाईए, गुरुद्वारियां दी रौनक वधाईए। कोशिश ये करिए डेरियां विच जाण दी बजाय ना गुरुद्वारे जाइए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच बैठीए, सतगुरु की पावन बाणी दे नाल जुड़न की कोशिश करिए। जो कुछ असीं लभ रहे ना डेरियां विचों, उन्हें सानू बहुत दूर का राह विखा दिता है गुरमत नालों, सिੱਖੀ नालों। ते जेड़ा सुख सानू चाहिदा है वो तो बाणी दे विच मौजूद है। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बां को कीजै, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, तां सतगुर शरण पवीजै। हजूर जी बख्शिश करदे हैं, कहंदे अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी, जिन ऐसी दात मेरी झोली पाई है, मैं ऐसे सतगुरु तो सदा सदा बलिहार जांदा हां, कुर्बान जांदा हां, सदके जांदा हां। रसना हर साध लगी सहज सुभाए। कहने लगे गुरु दी बख्शिश, गुरु दे उपदेश नाल ये रसना, ये जुबान वाहिगुरु दे नाम गुणां दे स्वाद विच जुड़ गई। रब दा गुण इहदे ते वस गया, रब सच्चा है, जुबान सच्ची हो गई। रब प्यार दी मूरत है, जुबान दे बोल प्यार दी मूरत बन गए। रब दे विच जो गुण है निर्माणता दा, रब विच जो गुण है निर्वैरता दा, इस जुबान ने वैर भावना की गल करनी छड़ दिती। रब विच जो गुण है, रब प्रकाशमान है, जुबान दे बोल भी हनेरा वंडण की बजाय चानण वंडण वाले बन गए। गुण आ गया ना जुबान दे विच, रब वाला गुण, रब दे स्वाद विच रती गई है जेबा। ताइयों महाराज ने इनू ताड़ना की है, मंदे पासे जाण तो रोकिया है। ए रसना तू अन्न रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। तेरी प्यास कदों दूर हो सकती है? जिस वेले तू गुरमत दे रस नूं पी लवें, गुरमत दे रंग विच रंगी जावें। झूठी गवाही ना देवे ये जुबान, कदे भी ना। चुगली ना करे ये जुबान, फोकी उस्तत ना करे ये जुबान, तदों ये जुबान गुरमत दे रस विच है। ते जे झूठियां गवाहियां दिंदी है, चापलूसी दियां गल्लां करदी है, झूठियां वडियाइयां दे पुल बनदी है हर वेले, तां ऐसी जुबान जिहड़ी है वो फिर गुरमत दे रस वाली नहीं, भावें वो धर्म ग्रंथां दे बड़े पाठ उचारण करदी होवे, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि गुण ते आया ही नहीं। एक पासे पूजा पाठ हो रही, दूजे पासे झूठियां गवाहियां भी देई जा रहे हैं। एक पासे पूजा पाठ है, दूजे पासे जहर वंडी जा रहे हैं आम समाज दे विच। फर्क की रहा? हजूर कहते ने सहज आत्मक डोलता आ गई जीवन विच, सुभाए प्रभु दा प्यार वस गया जीवन दे अंदर, जदों गुरु दे उपदेश राही प्रभु दी सिफत सलाह दे नाल मैं जुड़िया। मन तृप्तिया हर नाम ते आए, मन रज गया, मन दी भुख दूर हो गई। साचा नाम मीरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। तृप्त है मन, रजिया है मन। बंदे नूं लोड़ भावें ना होवे, पर मन की भुख मजबूर करती है कि बंदा जो कुछ मिलता है खो लवे बस, क्योंकि नीयत की भुख है, मन की भुख है, इनू पूरना बहुत औखा है। ताइयों हजूर ने कहा तृष्णा बिरले ही की बुझी है। महाराज कहते मन तृप्त हो गया, रज गया, हर नाम ध्याए, गुरु के उपदेश राही प्रभु के नाम नाल जुड़ के। अखी संतोखियां एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा भाव गवाए। अखां तृप्त ने, पराया रूप वेखना, मेर तेर दी भावना नाल वेखना, ऊच नीच दे नजरिए नाल तकना, हुण ये औगण नहीं रह गए वेखण दे विच। अखां ओही ने, नजरिया बदल गया, नजर ओहो है, नजरिया बदलिया, तरीका बदल गया। हजूर कहते ने अखी संतोखियां एक लिव लाए, एक करते वाहिगुरु नाल सुरत जोड़न करके, सुरत दी सांझ पैदा हो जाण करके मेरियां अखां हुण अमृत वेखण वालियां बन गईयां ने। हजूर कहते मन संतोखिया, मन भी तृप्त है, मन भी रज गया। क्यों रज गया? क्योंकि दूजा भाव गवाए। इन्हें हुण दूजे भाव नूं, दूजे पासे नूं त्याग के एक वाहिगुरु दे नाम दा आसरा तक लिया। इको करते पुरख वाहिगुरु ते भरोसा, इको वाहिगुरु दी टेक दृढ़ कर लई है। मेरे मन एकस स्यों चित लाए।
एक नाल चित्त की सांझ बन गई है, क्योंकि साहिब मेरा एको है। साहिब मेरे बहुते नहीं हैं, इको ही साहिब है, इको ही मालक है, वाहिद इको अकाल पुरख वाहिगुरू। हुण होर किसे साहिब की लोड़ नहीं, होर किसे मालक की जरूरत नहीं। बहुते मालक पैदा करन वाले जिहड़े ने ना, वो बेईमान चाकर तां हो सकते हैं, बेईमान नौकर तां हो सकते हैं, क्योंकि बहुते मालकां दा हुक्म मन्निया ही नहीं जा सकता। पहली तो गल यह है। दूजी गल, बहुते मालक पैदा करके मनुख अपने आप नूं चंगा सेवक साबित करना चाहुंदा है, जो हो नहीं सकता। महाराज कहंदे इको साहिब ते इके साहिब दी चाकरी, सेवक सच्चे शाह के सेई प्रवान। जिहड़े सच्चे मालक दे सेवक ने उही प्रवान ने। हजूर कहंदे ने देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाय। ये देह नूं शरीर नूं भाव जीवन नूं, देह दा भाव है, शरीर दा भाव है जीवन। इहदे विच हुण सुख वस गया, इहदे विच हुण दुख नहीं, तृष्णा नहीं, इहदे विचों हुण काम ते क्रोध दी अग्नि पैदा नहीं हुंदी। काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया, यह सुभाव मुक गया। महाराज कहंदे हुण प्रभु दे नाम नाल, गुरु दे उपदेश राही जिहड़ी सांझ बनी है, गुरु दे शब्द राही जिहड़ी सांझ बनी है, उहदे नाल सुख आ गया जीवन दे अंदर। हुण जीवन दा दुख जिहड़ा आत्मक विपदा, मानसिक क्लेश जिहड़े ने, वो खत्म हो गए ने, मुक गए ने। नाम परमल हिरदय रहिया समाय। परमल का अर्थ हुंदा है वो पदार्थ जिहड़ा सुगंधी पैदा करता है, कोई भी सुगंधी देने वाली चीज। हजूर कहंदे नाम ही वो सुगंधी है, ते ये मेरे हिरदे च वस गया। नाम की सुगंधी नाल हुण मैं आप भी महक रहा ते आले दुआले नूं भी सोहना बना रहा। नाम की सुगंधी दे नाल, चंगे जीवन की महक दे नाल मैं आले दुआले नूं सुचज्जा कर दिता है, चंगा कर दिता है। नानक मस्तक जिस वड भाग। हे नानक, जिस दे मस्तक भाग वड्डे हन, गुरु ने जिहदे मस्तक भाग उजले कर दिते हन। भाव जिहदी सोच नूं, जिहदी सुरत नूं, जिहदे अंदर दे संकल्पां नूं, जिहदे अंदर दे ख्यालां नूं सोहना बना दिता है। किसी हड्डी ते लिखे हुए लेखां की गल नहीं हो रही। जिहड़ी चीज जीवन नूं चला रही है उहदी गल हो रही है। वो कौन चला रहा है? विचार सत्ता, सोच, ख्याल, जिहदा करके असीं इत्थे आ गए, जिहदा करके असीं गैर हाज़र भी हो जाने हैं, जिहदा करके चंगा हो रहा है, जिहदा करके बुरा हो रहा है, जिहदा करके भला हो रहा है, जिहदा करके बुरा, किहदा करके अंदर दे विचार सदका। जिहो जिहा विचार फुरना उठदा है, वो फुरना सोध लिया गया, सवार लिया गया, चंगा बना लिया गया। जदों काम करवाउण वाला नेक होवेगा ते जिन्हें हुक्म मनना है वो आप ही नेक काम करेगा। अंदर जिहड़ी सत्ता है, विचार सत्ता, सोच दी, समझ दी, फुरना जिहड़ा है, संकल्प जिहड़ा है वो चंगा हो गया, तो कर्म आप ही चंगा हो जाना है। कर्म नूं सुधारिया केवल अपने मन की दशा करके सकता है। कर्म तदों चंगा हुंदा है जदों कर्म करवाउण वाला फुरना चंगा होवे। मन ने आख्या बई आपां संगत विच चलीए ते आपां आ गए, एक चंगा फुरना सी, चंगा काम हो गया। जे ऐसा चंगा फुरना ना पैदा हुंदा तो हो सकता सी आपां 12 बजे तक सुते ही रहिंदे। यह भी हो सकता सी भी आपां सवेरे सवेर ही कोई ऐसा किसी नाल झगड़ा ही सहेड़ लेंदे, गाली गलोच ही कर लेंदे, कोई मंदा पढ़न लग जाते, मंदा वेखण लग जाते। ऐसा भी तो हो सकता सी ना, अगर ऐसा फुरना मन में पैदा हो जाता। ये संस्कार ने, ये प्रभाव है चंगी विचार का जिहड़ी जीवन विच वस गई। हजूर कहंदे गुर की बाणी सहज बैराग। गुरु दे शब्द राही जीवन विच आत्मक अडोलता आ गई है ते वैराग बिरती पैदा हो गई। वैराग का अर्थ है मोह, झूठ, फरेब, दगेबाजी, पाप, अंधकार, जुल्म, विकारी सुभाव तो पिठ कर लैनी ते गुरु वाल गुणा वाल मुख कर लेना। यह गुरसिख का वैराग है, गुरसिख का यह वैराग है। सानू वैरागियां वांग फिरके बनाउण दी लोड़ नहीं। सिख तां माया च रहिंदा भी वैरागी है। ऐसी जुगत महाराज ने अपनी पावन बाणी विच सिख नूं बख्शिश कीती है। हजूर ऐसी कृपा रहमत करन, जैसा उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह आप दे विच सानू बख्श रहे ने, यह उपदेश साडी जिंदगी का हिस्सा बने
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।